ठीक है, हाँ. So that when white light passes through a prism, then it is splitted in 7 color. It is called color dispersion. Now, what is reason of color dispersion? Velocity of different color is different for a prism. Maximum velocity for red color and minimum velocity is for a violet color. आप ये पहले रिफ्रैक्शन में भी स्टडी कर चुके हैं. तो डिफरेंट वेलोसिटी इज रीजन ऑफ कलर डिस्पर्सन एंड वेवलेंथ डिफरेंट है, आप जानते ही हैं. वेवलेंथ इज मैक्सिमम फॉर रेड कलर एंड मिनिमम फॉर ए वायलेट कलर. वेवलेंथ डिफरेंट, वेलोसिटी डिफरेंट, देन अपने पास क्या होगा, रेड कलर ये फास्ट चलेगा एंड जो अपने पास वायलेट कलर है वो स्लो चलेगा. तो रेड कलर सबसे पहले बाहर आएगा, ये अपने पास बाद में आएगा. ठीक है, जब स्पीड अगर डिफरेंट है तो अपने पास क्या रहेगा, इनका डेविएशन भी डिफरेंट हो जाएगा. डेविएशन निकालें अपने पास, देखो ये तो ओरिजिनल ट्रैक ऑफ रे हो गया. फॉर रेड कलर एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा रेड हो गया. फॉर वायलेट कलर it is angle of deviation, it is delta violet. Delta violet, delta for violet is more than delta for a red. Clear? So that maximum deviation is for violet color and minimum deviation is for a red color. ठीक है, तो डेविएशन आ गया अपने पास, कलर डिस्पर्सन का रीजन भी समझ में आ गया. एंड combination of color is called a spectrum. Spectrum is a vibgyor. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and a red. ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे भाई. हाँ भाई, नेक्स्ट अपन चलते हैं एंगुलर angular dispersion. It is denoted by theta, right? अब अपन चलें, what is definition of angular dispersion? Difference of deviation angle for violet and red color is called angular dispersion. ठीक है, so that theta is equal to delta for violet minus delta for red. It is deviation for violet color and it is deviation for a red color. So that difference of violet and red color is called a angular dispersion denoted by theta. As we know, देखो delta is equal to n minus 1 into a, so that theta is equal to n violet minus 1 into a minus n red minus 1 into a, then a common n violet minus 1 minus n red minus minus plus 1, it is cancel out, so that theta is equal to n violet minus n red into a. It is formula of a angular dispersion. Clear? Here n violet is a refractive index for violet color. It is refractive index for a red color. क्लियर? एनी डाउट? इसमें कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट अपन चलें इसमें डिस्पर्सिव पावर. इट इज डिनोटेड बाय ईटा, है ना, साइन जानते ही हैं आप. डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्सिव पावर, इट इज रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन. It is a ratio of a angular dispersion and mean deviation. And a mean deviation. Mean deviation is taken for violet color. Mean deviation is taken for a violet color.
so that theta is equal to theta upon delta for, sorry, mean deviation is taken for a yellow color, so that theta upon delta y is equal to dispersive power. It is unitless and dimensionless, m naught, l naught and a t naught, by value of theta, putting value of theta, delta violet minus delta red upon delta for yellow. सेकेंड फॉर्मूला देखें आप, थीटा इज इक्वल टू n violet minus n red into a, it is divided n yellow minus 1 into a, ऐसे कैंसिल आउट, so that dispersive power eta is equal to n violet minus n red upon n yellow minus 1. Here n yellow is refractive index for a yellow color. एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। अभी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं बस। अच्छा, नेक्स्ट अपन स्टडी करते हैं भाई। एक एग्जांपल बता देता हूं भाई, डेविएशन विदाउट एंगुलर डिस्पर्सन। डेविएशन विदाउट एंगुलर डिस्पर्सन। देखो भाई, टू प्रिज्म है अपने पास, ये फर्स्ट नंबर प्रिज्म है, ये सेकंड नंबर प्रिज्म, एंगल ए एंड ए डैश और एन एंड एन डैश, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं अपने पास। इसमें अपने पास लिखा है डेविएशन विदाउट एंगुलर डिस्पर्सन। विदाउट एंगुलर डिस्पर्सन हुआ, इट मींस नेट एंगुलर डिस्पर्सन इज ए 0, ठीक है। सो दैट थीटा प्लस थीटा डैश इज इक्वल टू 0। नाउ value of theta, as we know, n minus 1 into a plus, एक second, n violet minus n red into a plus n dash violet minus n dash red into a dash is equal to 0। रिप्लेस करें तो n violet minus n red into a is equal to negative n dash violet minus n dash red into a dash. It is condition of a deviation without angular dispersion। आप एक बार देखें, साइन नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स ये हुआ कि ये प्रिज्म की जो पोजीशंस है अपने पास वो ये रहेगी, ये एंगल ए हो गया, तो जो सेकंड प्रिज्म है ना अपने पास, उसकी पोजीशन यूं होनी चाहिए भाई। वो इसलिए होनी चाहिए कि अपने पास साइन किसका आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन आ रहा है, इट मींस अपने पास एंगल्स आर अपोजिट हो रहे प्रिज्म में। इट इज डेविएशन विदाउट एंगुलर डिस्पर्सन एंड कंडीशन आ गई। उसके बाद में अपन एक और चीज चलते हैं इसी में, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, इसमें अपने पास ये है कि डेल्टा प्लस डेल्टा डैश इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एज वी नो n माइनस 1 इंटू ए प्लस n डैश माइनस 1 इंटू ए डैश इज इक्वल टू 0 एंड n माइनस 1 इंटू ए इज इक्वल टू माइनस n डैश माइनस 1 ए डैश।
इट इज कंडीशन ऑफ डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। साइन इसमें भी क्या है, नेगेटिव है। इट मीन्स अपने पास क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में फिर अपन आगे चलते हैं। भाई पंखा चला देंगे आपको। हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक इज ए रेनबो। डेफिनेशन ऑफ रेनबो। देखो भाई, सबसे पहले आप एक चीज चलें, रेनबो आपने सबने देखा ही है अपने पास, है ना। इन रेनी सीजन आफ्टर स्टॉपिंग ऑफ रेन सब water droplets are suspended in a atmosphere. After stopping rain, some small water droplets are suspended in a atmosphere. When light rays passes through water droplets, then due to refraction, total internal reflection, and color dispersion, a spectrum can be seen in a sky. It is called a rainbow. तो रेनबो में अपने पास मैं बता देता हूं। अब बारिश के दिनों में देख रहे हैं, बारिश होने के बाद में क्या होता है कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, छोटी वाली जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एयर में सस्पेंड रहती है। एयर में सस्पेंड इसलिए रहती है कि उनका वेट और बॉइंट फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं। व्हेन लाइट रे पासेस थ्रू दीज ड्रॉपलेट्स देन ड्यू टू कलर डिस्पर्सन, एक हो गया। सेकंड नंबर आएगा अपने पास कलर डिस्पर्सन के बाद में रिफ्लेक्शन। थर्ड नंबर आएगा अपने पास है total internal reflection take place, then spectrum can be seen in sky. It is called a color dispersion. It is called a rainbow. अब अपने पास रेनबो में बनता कैसे है वो यहां से मैं बता देता हूं। देखो भाई, ये वाटर ड्रॉपलेट है, ये सनलाइट से लाइट रे आई, यहां से इसका डिस्पर्सन हुआ, ये रेड कलर, ये वॉयलेट कलर। ठीक है, अब यहां आते इसका TIR हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो जैसे ही अपने पास TIR होगा तो यहां से ले लें अपने पास, ये यहां से आ गए और यहां चले गए। ठीक है, ये लाइट रे ये यहां आ जाती है, यहां पर डिस्पर्सन हुआ, यहां से TIR हो गया, यहां से रिफ्रैक्शन होता है। भाई थर्ड पॉइंट पे क्या होगा इसका, रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन हुआ, ये लाइट रे यहां आ गई, अब ये हॉरिजन वाली लाइन हो गई। अब अपने पास देखें, ये कलर जो है वॉयलेट के कलर की हो गई, ये कौन सा कलर की हो जाएगी, रेड कलर की हो जाएगी अपने पास। ठीक है, जब कोई ऑब्जर्वर यहां से देखेगा तो उसको ये लाइट रेज यहां पर एक स्पेक्ट्रम बनाएगी अपने पास भाई, और ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा इट इज ए रेनबो। ठीक है, एंगल फॉर्म्ड बाय रेड कलर इज 40 डिग्री एंड बाय वॉयलेट कलर इट इज 42 डिग्री। बाय रेड कलर कितना हो गया अपने पास 40 डिग्री एंड बाय वॉयलेट कलर इट इज 42 एंड डिफरेंस इज 2 डिग्री। It is called primary rainbow. देखो भाई, what is primary and secondary rainbow? देखो ज्यादातर तो जो है ना, ज्यादातर ओकेशंस पर तो अपने पास आपने देखा होगा केवल सिंगल रेनबो ही दिखता है, वो प्राइमरी रेनबो है। कई बार आप देखना कि दो रेनबो एक साथ भी दिखते हैं, एक नीचे होता है एक इसके जस्ट ऊपर होता है। दो रेनबो जो होते हैं, एक तो प्राइमरी रेनबो होता है एंड दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी रेनबो होता है। प्राइमरी रेनबो तो ये बनता है। सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, इफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस 2 times in water droplets, then secondary rainbow can be seen in a sky. 2 times अगर TIR हो गया तो फिर सेकेंडरी रेनबो भी बनेगा। अब सेकेंडरी रेनबो कैसे बनेगा, देखो भाई ये है इसको समझने का तरीका। लाइट रे यहां से आती है, ये यहां से स्प्लिटिंग हुई, रेड ये वॉयलेट, फिर इधर चली गई, एक बार TIR यहां पर होगा,
फिर वहां पर फिर टी आई आर लेना है भाई, 2 टाइम्स टी आई आर होगा इसका। ये इधर आ गया, ये अपने पास रेड कलर हो गया देखो, और ये वॉयलेट कलर हो गया। इसके बाद में यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, ये रिफ्रैक्शन हो जाता है। रिफ्रैक्शन होगा तो अब अपने पास ये लाइट रे यूं आएगी, इट इज रेड कलर, एंड ये वॉयलेट कलर। ये एंगल 50 डिग्री, ये 53 डिग्री। डिफरेंस अगर आप लेंगे इट इज 3 डिग्री डिफरेंस, एंड टी आई आर कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स। ये इसका अपने पास डिफरेंस है 2 टाइम्स, एंड इसमें टी आई आर कितने टाइम्स होगा, 1 टाइम्स। If a TIR take place 1 time, then primary rainbow is formed, and TIR take place 2 times, then secondary rainbow can be seen in a sky. Colors, order of colors is reversed in secondary rainbow, ठीक है, with respect to primary rainbow। जैसे प्राइमरी रेनबो में विबग्योर हो जाएगा तो वॉयलेट टू रेड चलेंगे, देन सेकेंडरी रेनबो में रेड टू वॉयलेट आ जाता है। तो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो आ गया, एक तो एंगल का डिफरेंस हो गया, एंड सेकंड डिफरेंस इज ए टीआईआर। क्लियर? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलेंगे भाई। चलो जी भाई, एक तो भाई आप टेस्ट देंगे तो कॉपी पर नाम जरूर लिखना। पहले भी आपने टेस्ट दिए तो नाम नहीं लिखते हो और सीधे मेरे को व्हाट्सएप कर देते हो, मुझे पता ही नहीं चलता है कि किसकी कॉपी कौन सी है। तो नाम जरूर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। Optical instruments, these instruments are based on a light rays, ठीक है। these instruments are based on a light rays। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से हो जाते हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप हो गया, कैमरा हो गया, एंड अपनी आई, आंख भी होती है अपने पास, क्योंकि अपन ये जानते हैं कि विदाउट लाइट रे अपन देख नहीं सकते हैं। तो आई हो गई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, उसके बाद में कैमरा हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया। अपन माइक्रोस्कोप भी स्टडी करेंगे, टेलीस्कोप भी स्टडी करेंगे, एंड आई भी स्टडी करते हैं। तो सबसे फर्स्ट अपन चलते हैं ह्यूमन आई के बारे में ही अपन देखते हैं। हाँ भाई देखो, सबसे पहले अपन चलते हैं ह्यूमन आई के बारे में। डिटेल से तो आप 10th में भी स्टडी कर चुके हैं, उसमें कॉर्निया, लिक्विड, ये सारे के सारे आप जानते भी हैं, और बायो वालों के फिर सिलेबस में है ही 12th में, ठीक है ना। अपने यहाँ फिजिक्स में ज्यादा डिटेल कंस्ट्रक्शन की नहीं है, अपने यहाँ मेन तो है इमेज फॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो बेसिकली अपने पास इमेज फॉर्मेशन क्या ही अपन स्टडी करते हैं। तो अपने को एक सीधा सा है, सबसे पहले अपने यहाँ जो है सिलेबस में, I have a convex lens. I have a convex lens with a focal length nearly equal to 2.5 centimeter. Adjustable.
I have a convex lens with a approximately focal length of 2.5 centimeter. It is adjustable. ठीक है ना भाई अपने पास। अब अपन चलते हैं when light ray passes through lens of eye, then image formed at a retina, so that retina is screen of a eye. इमेज हमेशा कहां पर बनेगी? रेटिना पर बनेगी। मैं एक चीज पहले बता देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड इमेज इज 2.5 सेंटीमीटर। लेंस एंड डिस्टेंस बिटवीन ए लेंस एंड रेटिना इज 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में अपन चलें, रेटिना जो है वो नर्व सिस्टम से कनेक्टेड रहता है और नर्व सिस्टम जो है ब्रेन से कनेक्टेड रहता है, जहां पर अपने को इमेज दिखती है या अपने रिएक्ट करते हैं। उसके बाद में एक और चीज चलते हैं, आप बायो वाले हो 10th में भी जानते हो, ये जो अपने पास लेंस होता है इट इज स्ट्रेचेबल होता है, अपने पास एडजस्टेबल होता है। इनके ऊपर अपने पास मसल्स रहती हैं, वो मसल्स लेंस को खींच भी सकती है। जैसे खींचेंगे लेंस की थिकनेस जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, लेंस थिन हो जाएगा। और मसल्स अगर अपने पास मान लो कंप्रेस करती है तो लेंस क्या हो जाएगा? बीच में से फूल जाएगा, तो थिक हो जाएगा। तो अपने पास है थिकनेस ऑफ लेंस इज चेंज्ड बाय मसल्स। क्यों चेंज होती है उसका रीजन भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले अपन चलें, अपन मान लो कि इनफाइनाइट की कोई चीज देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट हो गया अपने पास कि u इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट। then image formed at focus, as we know focal length of a lens is 2.5 centimeter, so that image of object is formed at a retina which is placed at a infinity। तो infinity पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज कहां पर बन जाएगी? अपने पास रेटिना पर बन जाएगी। ये इंफिनिटी पर अपन देख रहे हैं। अब अपन चलते हैं, जब अपन बुक पढ़ना चाहते हैं, है ना, बुक पढ़ना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट जो हो गई बुक हो गई। ऑब्जेक्ट जो बुक हुई उसमें अपने पास यहां से चले अप्रोक्सीमेटली -25 सेंटीमीटर लेते हैं भाई। ये इट इज नियर पॉइंट फॉर ए मैन। ठीक है, नियर पॉइंट कितना है अपने पास? अपना 25 सेंटीमीटर पर। आप बुक पढ़ते हैं तो 25 सेंटीमीटर पर रखते हैं अपने पास, तो यू का वैल्यू कितना हो गया? -25 सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ अपन लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, v फाइंड करना है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप 1/f, इससे 1/v माइनस 1/u, तो v का वैल्यू आएगा 2.77 सेंटीमीटर। v का वैल्यू कितना आएगा? इट इज 2.77 सेंटीमीटर। अब एक बार देखो, ये लेंस, ये रेटिना, कितने डिस्टेंस है? 2.5 सेंटीमीटर है। इमेज कहां बनेगी? 2.77 पर। इसका मतलब अपने पास क्या बनेगी? आफ्टर रेटिना बनेगी कि नहीं बनेगी? आफ्टर रेटिना बनेगी तो फिर देख सकते हैं क्या? ये बताओ, नहीं देख सकते। तो इमेज आफ्टर रेटिना अगर बनती है, इसका मतलब नहीं देख सकते। तो फिर ऐसा क्या होता होगा? तो इसका अपने पास आंसर ये है, आप ये जो ले रहे हैं ना फोकल लेंथ, ये गलत ले रहे हैं। आई लेंस की फोकल लेंथ फिक्स नहीं होती है, इट इज नॉट फिक्स, इट इज सेल्फ एडजस्टेबल। आई लेंस की फोकल लेंथ इज सेल्फ एडजस्टेबल। तो अब मैं इसमें बता देता हूं ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट होती है। ये जो अपन ने निकाला ये पूरा ही गलत है। u कितने पर है अपने पास? -25 सेंटीमीटर पर। इमेज कहां बननी चाहिए? रेटिना पर। रेटिना की डिस्टेंस कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। देन v इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। f का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा भाई कि फोकल लेंथ इस टाइम में अपने पास कितनी होनी चाहिए। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जब वैल्यू रखे आप कैलकुलेट करेंगे तो 2.27 सेंटीमीटर आएगी। इट मीन्स ये हुआ कि जब अपन बुक पढ़ते हैं तो लेंस की फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? 2.27 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जब अपन इंफिनिटी का देखेंगे तो अपने पास फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये काम कौन करेगा? अब लेंस की फोकल लेंथ डिक्रीज इंक्रीज करने का काम या एडजस्ट करने का काम, ये काम करती है मसल्स। जब अपन इनफाइनाइट का देखते हैं तो आईज जो होती है वो रिलैक्सिंग मोड में होती है, आसानी से देखते हैं। जैसे अपन बुक पढ़ना चाहते हैं तो आंखों को अपने पास में थोड़ा फाड़ना पड़ता है। उस समय अपने पास मसल्स क्या करती है?
लेंस की थिकनेस में चेंज करती है। ड्यू टू चेंजिंग इन थिकनेस ऑफ लेंस, focal length of lens also change and it is decreases by 2.27 centimeter. So that what is conclusion by this topic? Object placed everywhere, object is placed everywhere, image always formed at a retina, it is called accommodation power of a lens, right? What is accommodation power of lens? Object for eye placed everywhere, image always formed at retina, it is called accommodation power of lens or accommodation power of eye or adjustment power of eye. Clear? तो एडजस्टमेंट पावर अपने पास कहां से डिसाइड होगा? मसल से डिसाइड होगा, थिकनेस से अपने पास चलेंगे अपन। नेक्स्ट अपन चलते हैं, एक आध पॉइंट और है इसमें, नियर पॉइंट। नियर पॉइंट, it is point for a adult and a healthy eye, it is a point for a healthy and adult eye at which a book can be read by a person। ठीक है, तो आप नियरेस्ट डिस्टेंस है जहां से किसी बुक को इजीली पढ़ सकते हैं, इसके लिए हेल्थी एंड एडल्ट आई होनी चाहिए। एडल्ट इट मींस है अपने पास 15-16 इयर्स का हो जाए, उसके बाद में एडल्ट आई हो जाती है, ये मान लेते हैं। हेल्थी आई का मीनिंग है आपको विदाउट ग्लास, बिना चश्मे के क्लियर दिखना चाहिए, वो हेल्थी आई में आ जाता है अपने पास। तो नियर पॉइंट ऑफ ए पर्सन इज 25 सेंटीमीटर, इट इज डिनोटेड बाय डी। नियर पॉइंट ऑफ ए पर्सन इज 25 सेंटीमीटर एंड डिनोटेड बाय डी। अब अपन चलते हैं, आप लोग जब भी बुक पढ़ते हैं तो आप कभी देखना, आप जितनी डिस्टेंस पर रखते हैं वो 25 आती है भाई। आप बुक को पढ़ेंगे तो वो 25 सेंटीमीटर पर ही आएगी अप्रोक्सीमेटली, वो 25 सेंटीमीटर आपका नियर पॉइंट है। अब अपन चलें इसमें कि नियर पॉइंट जो है क्या फिक्स होता है? नहीं भाई, छोटे बच्चों के लिए नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर से भी लेस होता है, कम होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब होमवर्क करते हैं, तो छोटे बच्चे होमवर्क करते हैं तो एकदम बुक को पास में लेके करते हैं अपने पास, या उल्टे पड़े हो गए और पास पास में लिखते हैं। फिर अपने को ये लगता है कि ये तो आंखें फोड़ लेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उस बच्चे को उस डिस्टेंस से एकदम क्लियर दिख रहा है, और जहां से क्लियर दिख रहा है वो उसका नियर पॉइंट है। छोटे बच्चों में नियर पॉइंट 8-10 सेंटीमीटर का होता है, 8 to 10 सेंटीमीटर होता है। इसीलिए छोटे बच्चे पास में से भी देख लेते हैं, जबकि अपन नहीं देख पाते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनका नियर पॉइंट 8 to 10 सेंटीमीटर होता है। जैसे जैसे अपने पास वो ग्रोन होते हैं, एज इंक्रीज होती चली जाती है, उनका नियर पॉइंट भी इंक्रीज होता है। 16 ईयर्स के आसपास में अपने पास नियर पॉइंट कितना हो जाता है? 25 सेंटीमीटर हो जाता है, ये फिक्स हो जाता है। उसके बाद में आफ्टर एज ऑफ 40 तक तो ये चलता है, 40 ईयर्स का आदमी होता है तब तक तो यही रहता है। फिर आपने देखा होगा कि आफ्टर 40 ईयर्स क्या होता है, कुछ लोगों को बुक पढ़ने में प्रॉब्लम आने लगती है। तो जैसे मुझे ही मान लो, मुझे ही होती है, मैं 25 सेंटीमीटर से बुक को नहीं पढ़ सकता हूँ। मुझे बुक को पढ़ने के लिए थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ता है, यहाँ से मुझे देखना पड़ता है। तो ये मानो कि मेरा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पे नहीं है, तो कहाँ पर है? जहां से मैं बुक को क्लियर देख लेता हूँ विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मे के मैं बुक को जहां से क्लियर देख रहा हूँ, वो मेरा नियर पॉइंट है। मेरा नियर पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर पर आ चुका है। वो आफ्टर एज ऑफ 40 में आता है, इट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। ठीक है ना, बुढ़ापे का दोष है भाई अपने पास। ठीक है, तो नियर पॉइंट 40 के बाद में चेंज होने लगता है, वो 25 सेंटीमीटर से इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, फिर ये तो डिफेक्ट हो गया। इस डिफेक्ट का करेक्शन करने के लिए फिर चश्मा लगाते ही हैं, आप जानते ही हैं, ग्लासेस लेने ही पड़ते हैं। तो मुझे बुक अगर 25 से पढ़नी है तो फिर अपने पास का चश्मा लगाना पड़ता है। ये तो बात हो गई नियर पॉइंट की। अब अपन चलते हैं फार पॉइंट। एक होता है अपने पास है फार पॉइंट। फार पॉइंट का मीनिंग है अपने पास, इट इज फारथेस्ट डिस्टेंस फॉर ए हेल्थी आई। फारथेस्ट डिस्टेंस आदमी कहां तक का देख सकता है? इन्फिनिटी तक का।
कहाँ तक का देख सकता है? इन्फिनिटी तक का। बता भी देता हूँ, आप स्टार्स देखते हैं कि नहीं देखते हैं? वो करोड़ करोड़ किलोमीटर्स पे हैं अपने पास, आप मिलियन बिलियन ट्रिलियंस किलोमीटर्स पर हैं, आप क्लियर देखते हैं। तो फारथेस्ट पॉइंट और फार पॉइंट ऑफ ए पर्सन इज इन्फिनिटी। ठीक है, अब सवाल उठता है क्या ये सभी लोगों के लिए फिक्स होता है? हाँ भाई, छोटे बच्चे भी इनफाइनाइट तक का देख पाते हैं, बड़े भी देख पाते हैं। पर आपने एक चीज देखी होगी, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एज रिलेटेड डिफेक्ट भी आता है। बूढ़े लोगों को देखा होगा आपने, जैसे 60-70 साल में घर में दादाजी हों तो उनको बिना चश्मे के अगर कोई आदमी बहुत दूरी से आ रहा हो तो उनको एक धुंधला सा दिखता है, वो कहते हैं यार कोई आ रहा है पर मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। इसका मतलब उनका फार पॉइंट जो है इनफाइनाइट नहीं है। फिर जैसे अपने घर के पास में आते हैं तो वो पहचान जाते हैं यार ये तो राम गोपाल है। इसका मतलब ये हुआ कि उनका फार पॉइंट इनफाइनाइट से वहां पर शिफ्ट हो चुका है जहां से उस आदमी को वो क्लियर देख रहे हैं। अगर वो 100 मीटर से क्लियर देख रहे हैं, इसका मतलब उनका फार पॉइंट 100 मीटर पर शिफ्ट हो चुका है। चश्मे से तो फिर वो इनफाइनाइट तक का देख सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट मिनट बची है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। क्लास इज ओवर, थैंक यू।